Hello everyone, welcome to eCoaching. So in this video, we are going to start our journey with logical reasoning, right? Now, we know from the previous videos that logical reasoning is an important section in all the aptitude tests, right? In CAT, it comes under LRDI or DILR, that is data interpretation and logical reasoning, right? So logical reasoning, we have been introduced to, right? We know what kind of chapters will be there in logical reasoning, and we know a little bit about the course. Today we are going to start with two building blocks of logical reasoning, two chapters which are not so difficult, right? Which are something that you might be familiar with, and these chapters are directions and blood relations, right? So in this video we will be covering both. So we will be first discussing the theory, and then we'll be directly jumping to the questions. All right, so let's begin this journey. First, let's have a look at the directions. So the first chapter that we are going to talk about is directions, right? Now, majority of you are already familiar with the directions. That is, you know the directions, but you might not have seen what kind of questions come from this chapter, right? So first, let's understand the theory. So when we talk about the directions, basically this diagram that should come to your mind. Right? So these are the four directions, four of the primary directions, right? This one is north. This one is south. Majority of you already know this. Some of you might have a confusion between east and west. East kahan par hai, west kahan par hai. So east is to the right side and west is to the left side. East is to the right side, west is to the left side, right? So everyone knows that these are the four directions, four main directions, correct? Now, if let's say I want to name this direction, what should I call it? So I'm sure most of you know this. It is called northeast, right? It is called northeast. Similarly, if I have to name this direction, it will be called southwest. Similarly, this direction, it will be called southeast. And this direction, it will be called northwest. Now, I have a question for you here. आप लोगों ने इसको नॉर्थ ईस्ट बोला, why not east north? नॉर्थ ईस्ट ही क्यों बोला आपने इसको, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं? सोचो, why did you not call it east north? नॉर्थ ईस्ट क्यों? Some of you might say कि सर नॉर्थ से ईस्ट ऐसे जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो फिर यहां पर क्यों आप एंटी क्लॉकवाइज गए? अगर क्लॉकवाइज ही जाना होता तो यहां पर बोलना चाहिए था वेस्ट नॉर्थ, बट यहां पर भी आपने एंटी क्लॉकवाइज गए और आपने बोला नॉर्थ वेस्ट. ऐसा क्यों? पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट इट फॉर 2 minutes. क्यों हम उनको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ क्यों नहीं? सो यहां पर एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, दैट डायरेक्शंस में भी नॉर्थ एंड साउथ, दीज आर टू प्राइमरी डायरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ नेविगेशन. आप लोगों ने कंपास देखा होगा बचपन में, कंपास में भी दो ही डायरेक्शन होती थी, नॉर्थ एंड साउथ. ईस्ट वेस्ट आज भी इसमें नहीं लिखे होते हैं, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नॉर्थ एंड साउथ हैव बीन यूज्ड इन नेविगेशन सिंस एजेस. नेविगेशन मतलब प्लेस ए से प्लेस बी तक जाना, और उसके लिए नॉर्थ एंड साउथ एज अ फर्स्ट रेफरेंस यूज होते हैं, बाद में ईस्ट एंड वेस्ट. इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ आर द प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी डायरेक्शंस, एंड दैट इज व्हाई हर जगह नॉर्थ एंड साउथ को प्रायोरिटी दी जाती है. जैसे यहाँ पर आपने देखा नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, राइट? सो द रीजन इज दैट नॉर्थ एंड साउथ आर प्राइमरी अमंग द प्राइमरी डायरेक्शंस, राइट? ओके, चलिए, ये तो थोड़ा सा ट्रिविया था, ये तो हमने देख लिया, डायरेक्शंस भी हमने देख ली. ओके, वन मोर थिंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट होने के लिए ये एग्जैक्टली 45 डिग्री हो, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर मैं यहां पर एक और लाइन ऐसे ड्रॉ करूं तो ये भी नॉर्थ ईस्ट ही है. दैट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि ये पूरा एरिया साउथ वेस्ट है, ये पूरा एरिया साउथ ईस्ट है, ये पूरा एरिया नॉर्थ ईस्ट है, और ये पूरा एरिया नॉर्थ वेस्ट है. दिस इज यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? नॉर्थ ईस्ट का मतलब जरूरी नहीं है कि 45 डिग्री पे ही आप चलो तो ही आप नॉर्थ ईस्ट पे जा रहे हो. नो, इट नॉर्थ ईस्ट इज बेसिकली अ रीजन rather than a direction. It is a region, right? So सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शंस के लिए कि डायरेक्शंस कौन सी कहां पर है
ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? ओके, नाउ लेट्स से I want to understand which direction will be your north versus which direction will be my north. For example, अभी मैं आपके स्क्रीन पे हूं, so you are facing me and I am facing you. Okay, so if I point towards my north, will it be like this? जो मैं आपकी तरफ पॉइंट कर रहा हूं, is it my north? And similarly, अगर मैं आपको बोलूं कि point at your north, तो क्या आप मेरी तरफ से उंगली करोगे? सवाल यह है कि फिर नॉर्थ कौन सा रहा, आपका वाला नॉर्थ सच्चा है या मेरा वाला नॉर्थ सच्चा है? द पॉइंट इज दैट कि ऐसा कुछ नहीं होता. देयर इज नथिंग कॉल्ड योर नॉर्थ, देयर इज नथिंग कॉल्ड माय नॉर्थ. नॉर्थ इज नॉर्थ. डायरेक्शंस आर फिक्स्ड, दे कैन नॉट बी चेंज्ड, राइट? डायरेक्शंस आर फिक्स्ड. Directions do not depend on where you stand or which direction you face. नॉर्थ पे ही रहेगा, साउथ पे ही रहेगा, ईस्ट पे ही रहेगा, वेस्ट पे ही रहेगा, है ना? डज नॉट मैटर मैं कहां पर खड़ा हूं, राइट? सो आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे करेंगे? फिर एग्जाम में तो हमें नहीं मालूम हम कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम नॉर्थ कहां पर होगा एग्जाम में. सो इन एग्जाम ऑल यू नीड टू डू इज, आपका जो भी रफ शीट है या वर्कशीट है, वहां पर आप ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए बस, एंड देन उसको फॉलो कीजिए. कोई भी एग्जाम में जस्ट ड्रॉ दिस एंड फॉलो दिस. कोई भी आप एग्जाम में बैठे हैं, आप बस अपने पेपर में एक सीधा डायग्राम बना दीजिए और फिर उसको रेफरेंस लेकर आगे बढ़िए, राइट? ये डायग्राम बना दे और उसको रेफरेंस लेकर आगे बढ़े. यू विल सी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम कैसे कर रहे हैं, यू विल सी दैट. ओके, यहां तक चीजें क्लियर है? डायरेक्शंस कौन सी कहां पर है हमने ये देखा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. नॉर्थ और साउथ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट. ये हमको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, राइट? ओके, अगर यहां तक चीजें क्लियर है तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी लीनियर डिस्प्लेसमेंट. किसी चीज का या फिर किसी इंसान का डिस्प्लेसमेंट, बट इन टर्म्स ऑफ लीनियर, इन टर्म्स ऑफ अ लाइन. हाउ डज दैट वर्क? मान लो आपको ऐसा बोला है कि लेट्स से रमेश वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ. आपको ऐसा बोला गया कि रमेश वॉक्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ. सो आपको क्या करना है? लेट्स से यहां पर रमेश यहां पर है, दिस इज वेयर रमेश इज, पॉइंट ए. यहां से आपको साउथ मतलब नीचे, ऑब्वियसली हमारा रेफरेंस डायग्राम रेडी है, आप यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं साइड में. दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. आप देख रहे हो साउथ नीचे जा रहा है, तो यहां से हमें 4 किलोमीटर नीचे लाना है उसको. लेट्स से ये 4 किलोमीटर है और ये पॉइंट बी है. यहां पर रमेश अब खड़ा है, रमेश इज स्टैंडिंग एट पॉइंट बी. ओके, मान लो फिर आपको ऐसा दिया गया कि रमेश टेक्स अ लेफ्ट टर्न. रमेश टेक्स अ लेफ्ट टर्न. सो मैं यहां पर लिख रहा हूं रमेश टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर. अब सवाल यह है कि ये लेफ्ट अब किसका गिनोगे, आपका लेफ्ट या रमेश का लेफ्ट? सोचो, आपका लेफ्ट या रमेश का लेफ्ट, या फिर दोनों लेफ्ट सेम ही होंगे? So the correct answer is that left turn will be Ramesh का left turn, because left and right can change based on where we are standing. For example, आप अभी स्क्रीन पे मुझे देख रहे हैं, मेरा राइट ये है जो भी आपका लेफ्ट दिख रहा होगा, और मेरा लेफ्ट ये है जो आपका राइट दिख रहा होगा, है ना? जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं, तो मिरर में हम जब राइट हैंड ऐसे रेस करोगे तो आपका मिरर इमेज अपना लेफ्ट हैंड रेस कर रहा होगा. So that is the problem here. So ये लेफ्ट किसका लेना है? रमेश का लेफ्ट लेना है. रमेश is going like this, तो उसका लेफ्ट इस तरफ आएगा. And रमेश walks for 3 kilometers. And let's say this is point C. Ramesh has reached point C. Okay.
पहला क्वेश्चन कैसा आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 1, हाउ फार इज रमेश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ फार इज रमेश फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको क्लियरली पता चल गया होगा अभी तक के आंसर कैसे आने वाला है। सी यू, आपके पास ए बी है, बी सी है, बट यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड ए सी। करेक्ट। ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से हम आंसर लाएंगे बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है। वी नो दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, एंड हेंस हमारा आंसर क्या आएगा? ए सी इज नथिंग बट 5 किलोमीटर। ए सी इज नथिंग बट 5 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आएगा। सो एक चीज यहां से ये समझ में आती है कि डायरेक्शन के क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आप देखेंगे। अगर आपको ये पूछा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है या फिर एंड पॉइंट कितना पास है वगैरह वगैरह, डिस्टेंस ढूंढना है, तो 99% ऑफ द केसेस you will be using Pythagoras theorem, right? Question number 2, in which direction is Ramesh standing with respect to the starting point? क्वेश्चन का लास्ट लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए आपको पता करना है कि रमेश कौन सी डायरेक्शन में खड़ा है। फिगर पे देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट ए था, है ना, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ेगा, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट को रेफरेंस लेना पड़ेगा। इसका मतलब क्या? ये पॉइंट के रेफरेंस में डायरेक्शंस कहाँ होंगी ये पता करनी पड़ेंगी। सो इसका मतलब है सीधा मैं बस थोड़ा सा अपना डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। यहाँ पर ये होगा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इसका मतलब पॉइंट ए के रेफरेंस में रमेश इस डायरेक्शन में है। देखिए ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ और ईस्ट के बीच में, साउथ ईस्ट। इसका मतलब आंसर क्या है? साउथ ईस्ट। व्हाट इज द आंसर? साउथ ईस्ट इज द आंसर। रमेश स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे खड़ा है। क्लियर है एवरीवन? दिस इज द फर्स्ट टाइप, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को टफ करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? एज अ पेपर सेटर और एज अ क्वेश्चन सेटर, व्हाट कैन आई डू टू मेक दिस क्वेश्चन टफ? मैं इस क्वेश्चन को बड़ा बना सकता हूं, मैं रमेश की जर्नी को बड़ा बना सकता हूं कि लेट्स से रमेश ने यहां से स्टार्ट किया, फिर इतना चला, फिर राइट टर्न लिया, फिर इतना चला, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर इतना चला, फिर एक और राइट टर्न लिया, फिर एक और लेफ्ट टर्न लिया। तो ऐसे करके मैं जर्नी को बड़ा बना सकता हूं। बट what you need to understand is that for such questions डायग्राम ड्रॉ करने से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने से काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। So in such questions I would advise everyone to make a diagram and then move forward. All right? So that was the first type. The second type of questions are angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेट्स से आपको ऐसा बोला है कि रमेश इज फेसिंग साउथ, ठीक है। सो लेट्स से रमेश यहां पर खड़ा है, ये पॉइंट है, और रमेश फिलहाल साउथ को फेस कर रहा है। सो लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस, भाई दिस इज साउथ, ओके। एंड सिर्फ ऐसा बोला है कि रमेश इज फेसिंग, मतलब वो मूव कर रहा है ऐसा नहीं बोला है, वो खड़ा है, वो सिर्फ साउथ को फेस कर रहा है, ओके। व्हाट इफ आई टेल यू दैट रमेश टेक्स अ 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, 90 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। देखो कितना टर्न लेना है ये बता दिया, कहां से टर्न लेना है ये बता दिया, क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? क्लॉकवाइज मतलब ये डायरेक्शन। तो रमेश फिलहाल यहां पर है, यहां से एक छोटा फिगर ड्रॉ कर लीजिए सो दैट आप हमेशा इस पॉइंट के रेफरेंस को समझ पाए। वी नो दैट दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट।
चलिए फिलहाल रमेश का डायरेक्शन साउथ पे है, अगर वो 90 डिग्री टर्न लेता है तो 90 डिग्री यहां से इतना आ जाएगा, मतलब ये रमेश का नया डायरेक्शन है, विच इज इट, वेस्ट। सो रमेश इज फेसिंग वेस्ट राइट नाउ। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं आई? 90 डिग्री टर्न लेना है, क्लॉकवाइज टर्न लेना है। कैसे पता चला ये 90 डिग्री है? बिकॉज ये पूरा कितना डिग्री होता है, 360, है ना? तो ऑब्वियसली उसमें से ये कितना पार्ट होगा, ये होगा 90 डिग्री, राइट? ये तो आप जानते ही हैं कि हर एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, राइट? ओके, व्हाट इफ आपको ऐसा बोला जाए कि रमेश देन टेक्स 180 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज, 180 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आप सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो, सोचिए कि उसका अब कौन सा डायरेक्शन वो फेस करेगा, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक आंसर कर दिया होगा, ये सोच के कि सर 180 डिग्री है, क्लॉकवाइज करो कि एंटी क्लॉकवाइज करो, है ना? 180 डिग्री है क्लॉकवाइज, जैसे ये ऐसे घुमा के ले जाऊं या फिर ऐसे घुमा के ले जाऊं, जाना तो इधर ही है। इसका मतलब है 180 डिग्री पे आप कहां पर पहुंच जाएंगे, वापिस ये ईस्ट पे। सो नाउ इज रमेश ईस्ट पे, नाउ रमेश इज एट ईस्ट। क्या ये चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? राइट, इट्स वेरी सिंपल। एंगल दिया होगा, डायरेक्शन दिया होगा। ओके, अगर ये समझ में आया है तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपको ये दिया है, लेट्स से ये एग्जांपल है, लेट्स से रमेश का ही एग्जांपल है कि रमेश जो है इज फेसिंग ईस्ट, रमेश जो है वो ईस्ट को फेस कर रहा है एंड रमेश कुछ टर्न्स ले रहा है, वो टर्न्स मैं आपको देता हूं। सो रमेश का पहला टर्न है 143 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, दूसरा टर्न है 119 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा टर्न है 137 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज एंड चौथा टर्न है 217 डिग्री टर्न एंटी क्लॉकवाइज। और आपको ये पूछा है कि सारे टर्न्स लेने के बाद रमेश कौन सा डायरेक्शन फेस करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इट फॉर अबाउट 2 minutes एंड देन रिज्यूम। अभी फिलहाल कोई और इंस्ट्रक्शंस नहीं है, पॉज द वीडियो, 2 मिनट लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर यू सपोज टू फाइंड? रमेश इज फेसिंग विच डायरेक्शन, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड। सो पॉज द वीडियो फॉर 2 minutes, solve it and resume. Alright, so I hope by now you have tried to solve it. Now the thing is, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को अरिथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे अरिथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो? मान लो कि क्लॉकवाइज टर्न को आप बोलते हो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टर्न को नेगेटिव, क्लॉकवाइज टर्न को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज टर्न को नेगेटिव, ठीक है? चलिए टोटल क्लॉकवाइज टर्न कितना है, 143 प्लस 137, ये है टोटल क्लॉकवाइज टर्न। कितना होगा ये, 280 क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज कितना है टोटल, 119 प्लस 217, ये कितना होगा, सो दिस इज 16, ये हो जाएगा 320, 320 336 एंटी क्लॉकवाइज। इतना टर्न क्लॉकवाइज लिया है, इतना टर्न एंटी क्लॉकवाइज लिया है, ये है नेगेटिव। ओवरऑल टर्न के लिए मुझे इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी मैंने यहाँ पर माइनस साइन दे दिया है। सो 280 माइनस 336 कितना होगा, 280 minus 336, that will be minus 56. प्लीज अंडरस्टैंड, ओवरऑल टर्न कितना आया, माइनस 56। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब हमें 56 डिग्री टर्न लेना है। लेकिन सर ये माइनस आया, उसका मतलब क्या? माइनस का मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, हमने पहले ही दिया था। माइनस का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब हमें क्या करना है, रमेश को बस एक बार माइनस 56 मतलब 56 डिग्री टर्न करवाना है एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है रमेश, ईस्ट। ईस्ट कहां पर होता है, ईस्ट होता है यहां पर, ऐसे। अब रमेश जो है वो माइनस 56 टर्न ले रहा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। तो रमेश यहां तक जाएगा और ये डायरेक्शन कौन सा होता है, ये ईस्ट होता है,
ये नॉर्थ होता है, तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ ईस्ट। सो नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर, राइट। इसका मतलब ये मेथड हमने यहां पर क्यों किया, जब ये एंगल्स ऐसे थोड़े से वियर्ड दिए हो, जब एंगल्स को आप ड्रॉ नहीं कर सको, ड्रॉ किसको कर पाओगे, 90, 45, 180, 270, 360, इनको आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। लेकिन ये 143, 119, 137 ऐसे एंगल्स को आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो बेटर है उनको एरिथमेटिकली सॉल्व कीजिए, राइट। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जहां पर आप ड्रॉ करके या तो arithmetically क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। सो विद दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग